Good morning and welcome all of you. We have completed your chapter second. Today we are going to conclude your chapter 2 and I will give you some notes you have to write down and prepare your notes properly. It is very beneficial for you. It is fruitful for your exam. So that's why today video is very important. I have already read we have already read I have already taught you about the writing entity life, the Mesopotamian words. What is the meaning of Mesopotamia? You have to explain, you have to learn this definition. Second, we have discussed in the initial stage of this chapter the introduction of Mesopotamia, where we discussed the place that was excavated first time and Mesopotamian culture known by common people. And after all, we have read the Mesopotamian geography. In this topic, we read that the expansion of Mesopotamia, the mountains, the rivers, Euphrates, and deserted area, and their steppes, grassland, which is important for the pastoralism, and the fertile lands of the river course of the Euphrates, and the common people life and livelihood we have read in this paragraph. Second paragraph, then after we have discussed the significance of urbanism. Here in this topic we have focused that the urbanism, what is urbanism and how it was started in Mesopotamia, which center is play the core model for city and their development, and where we have discussed about the importance of temple, where we discuss about that the importance political center, and also discuss about the marketing center, economic center, and surrounding that areas gradually developed city. एंड सिटी के बाद क्या विकास हुआ. टेम्पल was the main center for the development of industry, for the development of culture, and the various artisans assemble particular that place and involve himself to increase the huge amount of production. हमने लिस्ट देखी. We have find the various tablets and behalf of that we are familiar with their work. And then after we also read about that the Raka head. By this topic Raka head we have understand that the mutual understanding, mutual bonding from the rural area to urban area. Next topic, the movement of goods into cities. In this topic we have read about the transportation facilities in Mesopotamian cities and their city streets condition, roads condition कैसी थी, सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी, अंदर तक जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी और खच्चरों की पीठ पे लाद के, गधों की पीठ पे लाद के, घोड़ों की पीठ पे लाद के सामान अंदर पहुंचाया जाता था. इसलिए नदियों के माध्यम से व्यापार करना अच्छा होता था. इस तरह की बातें इसमें हमने की. वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस टॉपिक्स. नेक्स्ट टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स. In the development of writing, that is a very important, the development of writing and writing, legacy writing, both topic is very important. डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स में हमने देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने साइन का इस्तेमाल किया, किस तरीके से उन्होंने तमाम तरीके के टेबलेट्स पे लिखने के लिए उन्होंने सुमेरियन अक्कादियन लैंग्वेज को यूनिफॉर्म मेथड पे लिखा और बहुत सारे साइन का इस्तेमाल किया.
साइन को किस तरह से लिखना है, आज से 3200 BC में उन्होंने स्टार्ट किया। ये अपने में यूनिक था। हमने इन चीज़ों को बात की थी विस्तार से। वी हैव डिस्कस पर्टिकुलर पॉइंट्स इन द वेरी ब्रीफ इन माई वीडियो। इफ यू विल see, then you can very easily aware of the importance of that point. Next point, we have also read about that importance of tablets. We shown that tablets and the writings which was mentioned on the tablets that was made from clay, mud, बड़े प्रकार से इसको मिट्टी से तैयार करके बनाया जाता था, उस पर लिखे जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक, द सिस्टम ऑफ राइटिंग्स, हाउ कैन दे राइट। वी हैव डिस्कस सिस्टम ऑफ राइटिंग्स में कैसे वो शब्दों को लिखते थे। मैंने आपसे कहा था कि वर्ड नहीं थे, वो प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह थे, जिसमें कुछ शब्द जोड़ के नए शब्द बना ले जाते थे। शब्दों की संख्या, वर्ड्स की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। इन चीज़ों को हमने देखा था। फिर हमने लिटरेसी के बारे में बात की, और हमने लिटरेसी के बारे में कहा कि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन जितने लोग थे वो बड़े इंटेलेक्चुअल थे। उनको अच्छे से लिखने की कला थी, कूट भाषा में वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे। राजा खुद पढ़ा लिखा था और उसने तमाम तरीके अडाप्ट किए कि राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ राइटिंग्स, और यूज़ ऑफ राइटिंग्स को हमने डिटेल करते हुए बात की कि किस तरीके से यूज़ ऑफ राइटिंग्स इम्पोर्टेंट था वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ पे स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाई जाती थी। यूज़ ऑफ राइटिंग्स में कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने कि किस तरीके से लेपिस लेजली को लाने के लिए और फिर उनको अपने मंदिर में लगाने के लिए अनमरकर अपने दूतों को भेजता है, और फिर जब वो दूत अनमरकर के सेंटेंस को पूरी तरीके से अगले राजा अरट्टा के शासक से नहीं कह पाता, तो फिर अनमरकर उसको टेबलेट पे रिटन फॉर्म में अपने इंस्ट्रक्शन लिख के देता है। और यहीं से राइटिंग है, यूज़ ऑफ राइटिंग स्टोरी ट्रेड के लिए, लेपिस लेजली लाने के लिए, व्यापार में इसका इस्तेमाल किया गया, राजा के द्वारा किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस चीज़ों पे हमने बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक था अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल एंड किंग्स। यहाँ पे हमने टेम्पल की बात की थी, इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल, यूज़ ऑफ टेम्पल एंड हाउ it was built, what was the role of temple in the Mesopotamian society। और फिर हमने यहाँ पे इसको काफ़ी डिटेल्स किया। आई थिंक अर्बनाइजेशन पे मेरे 2 पॉइंट्स हैं जिस पे मैंने बात की है। आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो यह बात आपको आ जाएगी समझ में। अर्बनाइजेशन के बाद हमने बात की थी कि वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ पे जो चीज़ें बन रही थी, फोर्टिफिकेशन की बात की, टेम्पल आर्किटेक्चर पे बात की। हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पे आपको ये पिक दिखाई थी कि देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर में जो एक हाउस की तरह ही थे, घर की तरह ही थे, लेकिन हाउसेस जो दीवारें थी वो थोड़ी यूनिक थी, अलग थी घर की दीवारों से। मंदिरों की दीवारें जो ये दिख रहा है आर्किटेक्चर, ये मंदिर की दीवार थी, और इसके आर्किटेक्चर को देखिए दीवार कैसे बनी हुई है, और आसानी से पहचाना जा सकता था कि ये टेम्पल थे। इस पर हमने विस्तार से बात की थी। यू शुड वॉच द वीडियो। और फिर हमने बात की सील्स पे, मेसोपोटामियन सील पे हमने बात की। ये सिलिंड्रिकल थी, इन पे कई सारे छाप थे, जानवरों के, वृक्षों के, मनुष्यों के। क्यूनस लिपि में लिखी गई थी, क्यूनस फॉर्म मेथड में राइटिंग स्किल यूनिफॉर्म एक्सेप्ट किया गया था। फिर हमने लाइफ इन द सिटी देखा, लोगों का रहन सहन शहरों में कैसा था। इन चीज़ों पे हमने बात की। समाज में डिवीज़न देखा हमने, अपर क्लास के लोग भी थे, मिडिल क्लास के लोग भी थे, लोअर क्लास के लोग थे। अपर क्लास के लोगों के कुछ ग्रेवयार्ड्स मिले जिसमें कीमती चीज़ें डाली गई थी, रख के उनको दफन किया गया था कब्र के साथ, जिसमें लेपिस लेजली थी, सेरेमोनियल डैगर था, सेल थी, और वेरियस ऑर्नामेंट्स थे।
तो इससे पता चलता है कि गोल्ड के बने हुए ऑर्नामेंट्स थे, जो पता चलता है कि ये सोसाइटी के अपर क्लास के लोग थे, एलिट क्लास के लोग थे, रॉयल फैमिली के लोग रहे होंगे या बड़े समृद्ध व्यापारी रहे होंगे। लोअर क्लास के लोगों भी मालूम चला, घर में इनकी जो कब्र थी वो घर में ही दफना दी गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी कई पार्ट में बटी थी। हमने इन चीज़ों पर बात किया। इसमें हमने उरुक शहर के बारे में बात की, उरुक शहर के एक्सकवेशन के बारे में बात की, उनकी गलियों के बारे में बात की कि किस तरीके से बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण गलियां ख़राब हो जाती थी, घरों की दहलीजों को ऊंचा करना पड़ता था, कभी कभी सड़कें ऊंची हो जाती थी तो कीचड़ युक्त पानी घरों में घुस जाता था, इसलिए बार बार इनको दहलीज ऊंचा करना पड़ता था। और हमने कुछ अनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस मैटर पर भी बात की थी। घर अगर दरवाज़ा किसी दरवाजे के सामने न खुले तो बड़ा भाग्यशाली माना जाता था। अगर लकड़ी का दरवाज़ा है बाहर की तरफ खुले तो जो लैंड ओनर की पत्नी है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, ऐसा मान्यता थी। दैट इज आल्सो सुपरस्टिशियस बट इट आल्सो वी गॉट इन इन्फॉर्मेशन बाय द टेबलेट्स। हमने टेबलेट्स के आधार पर इन सूचनाओं को प्राप्त किया, जाना। और फिर हमने बात की ट्रेडिंग एंड टाउन इन द पास्टोरलिज्म जोन। हमने इसमें पास्टोरलिज्म जोन के बारे में बात की और हमने यहाँ पे डिटेल करते हुए कहा कि किस तरीके से पास्टोरलिज्म जोन में दो लोग थे, पीजेंट्स थे और हर्डर्स थे, दोनों के बीच आपसी विवाद, कन्फ्लिक्ट्स, और कन्फ्लिक्ट्स के बाद में हर्डर्स ने अपने को इस्टेब्लिश किया, राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, नए नए क्षेत्रों को जीता और मिक्स कल्चर के रूप में अपने को मेसोपोटामियन सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर लिया, सेट कर लिया। फिर यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट, कुछ विवाद के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उनके खेतों में जानवर न जाना और जानवर आना, इन सारी चीज़ों पे हमने डिटेल की थी। फिर हमने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन जिमरलिम के पैलेस के बारे में बात की। हमने कहा जिमरलिम का जो पैलेस था बड़ा भव्य था, और फिर जिमरलिम की स्टोरी भी हमने चर्चा की, जिमरलिम की स्टोरी, मारी ऑफ किंग जिमरलिम। हमने इन चीज़ों पे बात की। फिर अगर और चीज़ों को देखें, छोटी छोटी बातों को देखें, तो हमने राजा के बारे में बात की, राजा के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात की, और सिटीजन मेसोपोटामियन कल्चर जो नगर की संस्कृति थी उसके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से टेबलेट का इम्पोर्टेंट था। लेगेसी ऑफ राइटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिस पर मैंने पहले भी कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देखना है। उन चीज़ों पे भी हमने देखा। हमने यहाँ देखा कि उनके अपने कैलेंडर थे, उनको मैथमेटिक्स का ज्ञान था। मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया को, वो मैथमेटिक्स का ज्ञान थी। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल नॉलेज। उन्होंने रूट्स को, स्क्वायर रूट्स को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीज़न को, टेबल्स को, स्क्वायर को, सारी चीज़ों को उन्होंने इसको डिटेल किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और इसकी सूचना आज से करीब इतनी पुरानी है, 3200 BC तो 1800 BC के आसपास इन लोगों ने इसको डेवलप कर लिया था। हम लोगों ने बात किया था कि पाई का मान, इट मीन्स पाई 1.41421356 को उन्होंने कल्पना कर लिया था, गणना कर ली थी, कैलकुलेशन कर लिया था। थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, पॉइंट के लास्ट 3 डिजिट में डिफरेंसेस थे। 1.41421296 उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थे, लेकिन वर्तमान में जो कैलकुलेशन है वो 1.41421356, लास्ट 3 डिजिट 356 और लास्ट उनका 3 डिजिट 296, थोड़े से ही डिफरेंस है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने आगे थे। उन्होंने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में लिखा। लूनर कैलेंडर पे अपने पूरे ईयर को बांटा 12 मंथ में, और एक मंथ को 4 वीक में, और एक वीक को 24 आवर्स में, और 1 डे को 24 आवर्स में, और 1 आवर्स को 60 मिनट्स में उन्होंने बांटा। उन्होंने टेबलेट्स पे इसको लिखा, इसकी डिटेल्स की, आकाश के ग्रह नक्षत्रों की दिशाओं पे उन्होंने काम किया। ये उनके सबसे महत्वपूर्ण काम थे। फिर हमने बात की थी अर्ली लाइब्रेरी के बारे में, जहाँ सुरबनीपाल ने 668 to 627 में पहली बार दुनिया में
worldwide level. First time the library was established by the Ashurbanipal in 668 to 627 BC. आप सोचिए कितनी पुरानी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास उन्होंने एक लाइब्रेरी बना ली थी, और लाइब्रेरी के लिए उन्होंने साउदर्न पार्ट से बहुत सारे टेबलेट कलेक्ट किए, उस पर लेबलिंग किया। कह रहा है 10,000 से ज़्यादा टेक्स्ट उनके पास थे, 30,000 से ज़्यादा उनके पास टेबलेट्स थे उसकी लाइब्रेरी में, और जो दूर दराज के क्षेत्रों से कलेक्ट कराए गए थे अशुरबनिपाल के द्वारा। अशुरबनिपाल कहता है कि मुझे भगवान ने इतना ज्ञान दिया है कि मैं उस ज्ञान को सभी देता हूँ को ज्ञान के बराबर रखता हूँ। वो कहता है कि उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अगली जनरेशन को कुछ दूँ, लाइब्रेरी के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से इसको जान सकें। इन सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। अब बात आती है कुछ नोट्स की जो मैं आपको दूंगा, इम्पॉर्टेंट नोट्स। इम्पॉर्टेंट नोट्स में जैसे आप अगर अब लिखना शुरू करें तो कई सारे आपको नोट्स धीरे धीरे मिलेंगे। जैसे मैं लाइन बाय लाइन बोलूँगा, आप इसको पूरे चैप्टर को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ लिसन केयरफुली। आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर पॉइंट वाइज, लाइन बाय लाइन। बहुत धीरे धीरे कहूँगा कि जिससे आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अ ग्रेट सिविलाइजेशन, मैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सोचना है जैसे मैं कह रहा हूँ। अ ग्रेट सिविलाइजेशन flourished in Mesopotamia around 5000 BC. Mesopotamia is the modern Iraq. Originally, Mesopotamia is a Greek word which means the land between two rivers, Mesos and Potamus. The Tigris and Euphrates were the two rivers between which the civilization of Mesopotamia flourished. Mesopotamia is a flat plain. The excavation work started here about 150 years ago. Uruk and Mari, there were two cities which was very important, which was excavated in 1930 decades, and we have know about that this civilization way of the excavation. Sumer region was the lower part of the Mesopotamian civilization. It was the heart of civilization. Sumerian were the first to develop a civilization in Mesopotamia. That is why the civilization has been named after them. Sumerian civilization. Sumerian were the first to develop civilization in Mesopotamia. मेसोपोटामिया में सुमेरियन के द्वारा ही पहली सभ्यता विकसित की गई, इसलिए इसको सुमेरियन सभ्यता का नाम दिया गया। As per excavation, there were three types of cities in Mesopotamia. They were religious, commercial, and royal cities. We have also discussed about that. The city developed surrounded with the center which was maybe religious, which was maybe political center, and which was maybe economical center. There are three types of city was developed, emerged in the Mesopotamian civilization. Ur, Lagos, Kis, Uruk, and Mari were some of the most important city of Mesopotamian civilization. Again, I repeat the city name: Ur, Ur, Uruk, 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 Lagos, Lagash, Lagos, and Mari, 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 were some of the most important city of the Mesopotamian civilization. There are four most important city of this civilization: Ur, Lagos, Kis, and Mari. Soil of Mesopotamia was very fertile, but agriculture was threatened because of the natural causes. The crops grown were wheat, barley, pea, and lentil. Mesopotamian civilization was based on a definite plan. There were three kinds of slaves that exist in Mesopotamian society. They were
war, prisoners, children sold by their parents, and those who failed to pay their debt, they were ill treated. We have also discussed about the discrimination in society, where we read that the kings, actually during that time, the monarchical form of the government that was not set properly, but they involved himself in warfare and they attacked on the other village एंड कैप्चर सम पीपुल, वहाँ से उठा लाते थे और फिर उन्हें गार्ड के रूप में, उन्हें अपने स्लेव के रूप में काम कर लेते थे. दैट्स वाई हियर मेंशन देयर वर थ्री टाइप ऑफ स्लेव्स, थ्री काइंड्स ऑफ स्लेव्स existed in Mesopotamian society. They were war prisoners, children sold by their parents, and those who failed to pay their debt. They were ill treated. Next point, Mesopotamian society consisted of three classes: upper class, middle class, and lower class. How can we say? In the city life, we have read the society was discriminated behalf of the wealth. We have read the upper class of society and their graveyards where we found in the excavation the precious metals, goods. So we can categorize the society in three parts: upper class, middle class, and lower class. Ruling class, the nobles. Ruling class, the nobles, the royal people, and the high officials belong to the upper class. Member of the upper class led to luxurious life. Merchant, traders, landlords, artisans, craftsmen belong to the second class. Slave belong to the lower class. Cows, goats, oxen, and sheep were the main animal of domestication. Hammurabi the Great was the ruler of the Mesopotamia during the period of 2067. Hammurabi, it is very important. Hammurabi is the code of conduct. This was the book of the law that was compiled during 2067 BC to 2025 BC in Mesopotamia. Hammurabi the Great was the ruler of Mesopotamia. He compiled a rule book for the society. Hammurabi Code of Conduct was the greatest contribution of the Hammurabi. They were 282 in number and covered every aspect of life. I mean to say, in other words, we can say that there were 282 articles which covered every aspect of life in this rule book, in this the constitution book of the Mesopotamia, that is Hammurabi, which was compiled by the king Hammurabi during 2067 BC to 2025 BC. This is very important. I again repeat, Hammurabi. This question asked various time in your exam. It will ask, so that's why you have to mention, you have to pay attention that word Hammurabi and the code of conduct. Okay, the cuneiform script. Cuneiform is also very important points. Cuneiform script was the script of Mesopotamia. Mesopotamian had a great interest in literature also. Gilgamesh was their famous epic. It was the work of Uruk, who was the ruler of Mesopotamia in 2700 BC. The Mesopotamians were interested in the mathematics too. 60 important numbers have been found in the numerals. The legacy of writing, where we read about that the information of the mathematical knowledge of the Mesopotamian people.
So they have clear information about the mathematics and their science. They also aware of tem- temples of Mesopotamia also had much importance in the history of the Mesopotamia. The temples that was very important, that is called ziggurat in Mesopotamia. Temples of Mesopotamia also had much importance in the history of Mesopotamia. Temples were center of religious activities, but it was not only the center of religious activities, it's also center of the economical activities. We have read how can it provoke and promote the common people to इंटरेक्ट विद टेम्पल को चढ़ावा देना, उसके बाद वहाँ पे आर्टिसन का सिंबल होना, फिर वहाँ पर उद्योगों की स्थापना होना, चीज़ों को हमने देखा. द टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस उर एंड इनाना, एंड दैट आफ्टर वी हैव सीन दैट द Akkadian kings and their gods was established in the temple of Mesopotamia. हमने पढ़ा इसको, हमने देखा इनको. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बात कर लेते हैं. मेसोपोटामिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन टू रिवर, इट मेड ऑफ ग्रीक वर्ड मेसस मीनिंग मिडिल एंड पोटामस मीनिंग रिवर. डिवीजन ऑफ लेबर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर. इन दिस सिस्टम ईच लेबर person is given a particular part of work in which he is skilled. That is called division of labor. Third point, nuclear family. Nuclear family, a very small family consisting of husband, wife and their children. Nuclear family meaning, nuclear family, a very small family consisting of husband, wife and their children. Cuneiform, the wedge-shaped symbol which represent the syllables and sound of word, that is called cuneiform. Cuneiform, that was the written script, I mean to written style, not a script. Cuneiform is the method in which they wrote their inscriptions on tablets. Cuneiform, the wedge-shaped symbol which represents the syllables and sound of word. And stelae, stone slabs with inscriptions or carving. That is a very important thing. This is the points. And one thing more, the Hammurabi. Hammurabi, actually the Hammurabi, the name of the king of Mesopotamia during 2067 BC to 2024 25 BC. He was in Mesopotamia. He wrote up the constitution book of the Mesopotamia, that is called Hammurabi. Hammurabi code of conduct was the greatest contribution of Hammurabi. They were 282 in number and covered every aspect of life. That is Hammurabi. And if you will discuss about the chronology, if you discuss about the dating of the Mesopotamia, with the help of book you can read, you can learn it. आप इसके आधार पे इन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं. और मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से मैंने इस चैप्टर को आज यहाँ पे कंप्लीट किया. नेक्स्ट वीडियो में आपके थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे. आपका थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर पे अगर आप देखें तो थर्ड चैप्टर की बात करने के पहले थर्ड चैप्टर का जो टॉपिक्स है, थर्ड चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है. थर्ड चैप्टर आपका है थीम सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर, रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर के बारे में डिटेल करेंगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में. पहला सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें हम रोमन एम्पायर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को डिटेल करेंगे. आज के लिए इतना है. अपना ध्यान दीजिए, घर पे रहिए, खूब पढ़िए और मेहनत करिए. कोई डाउट हो, ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए हैं. प्लीज़ कनेक्ट मी.
and solve your doubt. Okay, bye and take care.